गुड आफ्टरनून. आवाज येतोय माझा? आवाज येतोय का? यस. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच. सो we are dealing with दोस्तों that is concept of life cycle and alternation of generation. The concept of life cycle and alternation of generation. The concept of life cycle and alternation of generation. Now, what is the concept of life cycle? Means it is a duration or it is a sequential process. Okay, this is an sequential process means एक के बाद एक इवेंट होते रहते हैं. मान लो हमारी एक लाइफ साइकिल है, एक्चुअली हमारा एक लाइफ है. ओके, जब हमारा बर्थ होता है, फिर हम इन्फेंट बनते हैं, फिर टोडलर और फिर चाइल्ड, फिर एडोलेसेंट, फिर अडल्ट, फिर मिडिल एज और देन ओल्ड एज और फिर डेथ होती है. तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं. जैसे बच्चू फेज है, जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव या फिर मैच्योर फेज होती है और फिर बाद में होती है ओल्ड या फिर सीनेसेंट फेज. वैसे ही प्लांट के लाइफ में भी दो इंपॉर्टेंट फेजेस है. एक है गैमेटोफाइटिक फेज और दूसरी है स्पोरोफाइटिक फेज. गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज दो फेजेस है. एंड डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेशन ये तय किया जाता है कि डोमिनेंट फेज कौन सी है. ओके, प्लांट हैव टू फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. प्लांट हैव दोस्तों, शुरू करते हैं. कल आज जरा इलैबोरेट करके देखेंगे व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. प्लांट्स हैव, दैट इज एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, चाहे वो अलगी हो या फिर हायर प्लांट, कोई एंजियोस्पर्म क्यों ना हो, every sexually reproducing plants have दोस्तों have two generations in their life. दो जनरेशन होते हैं, दो फेजेस होते हैं. टू जनरेशन इन देयर लाइफ और टू फेजेस इन देयर लाइफ. दैट इज दोस्तों स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, या फिर that is gametophyte and sporophyte. You all know that the gametophyte is gamete producing phase है and it is haploid. Okay, it is haploid. And sporophyte is spore producing phase है and it is diploid in nature. It is diploid. ये आपको पता है. Just wait. आज जरा डिटेल जाएंगे इसके. Gametophyte is gamete producing phase and sporophyte is spore producing phase है. Both gamete and spore are haploid. Gametophyte produces gamete by दोस्तों माइटोसिस एंड स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस. ये याद रखो, कल भी मैंने ये लिख के दिया था. नाउ तो आगे वाली लाइन है डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ फेज. ओके, so that will be the decided that which phase is dominant and which phase is not dominant. So dominant phase जो होगी उसका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा. प्लांट अगर 1 साल का है तो डोमिनेंट फेज का ड्यूरेशन सपोज मान लो उसमें से 10 महीने वो डोमिनेंट फेज ही चलेगी. सो डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन of phase, depending on the duration of phase, that so depending on the duration of phase, it is decided that which phase, means gametophytic phase or sporophytic phase, which phase
which phase is dominant or not, which phase is dominant or not. तो किसे कहेंगे डोमिनेंट फेज? जनरली दोस्तों, if the duration of phase is longer, if the duration of one phase is longer, if the duration of one phase is longer, number one, if that particular phase, from the main plant body, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर है. If the duration of one phase is longer, okay, and if that particular phase, okay, if that particular phase from the main plant body, if that particular phase from the main plant body, such phase is called as a dominant phase. Now please pay attention. अगर ये दोनों फीचर है दोस्तों, so such phase is known as K/A, means known as dominant phase. जो प्लांट बॉडी बना रही है और जिसका ड्यूरेशन लॉन्गर है उसे कहते हैं डोमिनेंट फेज. और in some plant gametophyte can be dominant phase, means main plant body is formed by gametophyte, or in some other plant sporophyte is dominant phase. This is ये मैंने बोला है, मैंने ये कल भी लिख के दिया था दोस्तों, याद रखो. इन algae and bryophyte, ये कल भी मैंने बात की थी. इन algae and in bryophyta और in bryophytes, याद रखो दोस्तों, that is in algae and bryophyte, that is gametophyte जो है it from the main plant body. So gametophyte का ड्यूरेशन लॉन्ग होगा, gametophyte from the main plant body. So gametophyte is the dominant phase. Number one. Number two, and in बाकी के जो बचे हुए प्लांट है, enteridophyte, okay, gymnosperm and angiosperm. Enteridophyte, gymnosperm and angiosperm, याद रखो दोस्तों. Angiosperm, that is sporophyte is the dominant phase. इसका मतलब है sporophyte having longer duration and main plant body is formed by sporophyte. क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? आप बोलो, is this statement is true or false? In Tracheophyta, sporophyte is dominant stage. In Tracheophyta, sporophyte is dominant stage. Can I write down this? Okay, एक important note लिखता हूं. Okay, ये question है double layer वाला. In Tracheophytes, is it true or false? In Tracheophytes, okay, sporophyte is a dominant stage. Sporophyte is dominant phase. Means Tracheophyte में क्या आते हैं ये हमें पता होना चाहिए. This is true or false? This is an correct statement. ये true है क्योंकि Tracheophyte में कौन आता है दोस्तों? Tracheophyte includes, याद रखो, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. These are the plants, these are the divisions which are included into the Tracheophyte. ये अभी मेरे को ये statement याद आई. Yes or no? Now please pay attention. Okay. बर झालं. ओके, नम्रता बेटा तुझे जे क्वेश्चन आहे ते लेक्चर झाले आपण बोलू. हा, चल आता जरा लक्ष द्या. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों? मीन्स मैं आपको समझाता हूं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, और व्हाट इज मीन बाय हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, व्हाट इज मीन बाय डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और व्हाट इज मीन बाय हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. नाउ प्लीज पे अटेंशन. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसे कहेंगे? द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल.
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मींस ये ऐसे प्लांट है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द algae लाइक वॉल्वैक्स एंड स्पाइरो वगैरह इनमें होता है। इनमें दैट इज डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो डिपेंडेंट है, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ जाइगोट। तो इसमें ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सपोज मान लो हम ये यहाँ पे कलर कोड लेते हैं, सपोज ये जो व्हाइट कलर कोड मैंने लिया है, ये जो व्हाइट कलर कोड मैंने लिया है ये है फॉर गैमेटोफाइट, ये है फॉर गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइटिक फेज है, ये गैमेटोफाइटिक फेज है, इतनी बड़ी गैमेटोफाइटिक फेज है, इतनी बड़ी। ओके, दिस इज एन गैमेटोफाइटिक फेज, ये गैमेटोफाइटिक फेज है, इसका ड्यूरेशन इतना है, ये गैमेटोफाइटिक फेज है, इसका ड्यूरेशन मान लो इतना है, ये है गैमेटोफाइटिक फेज। ओके, व्हाट इज दिस? ये दोस्तों इनमें ये गैमेटोफाइटिक फेज है, ये है गैमेटोफाइट, और इसे कहेंगे गैमेटोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज है जो कि हैप्लॉइड होती है, यन है, सिंगल यन है, और छोटी सी कहीं तो भी छोटी सी दोस्तों स्पोरोफाइटिक फेज है, छोटी सी कहीं तो भी स्पोरोफाइटिक फेज है। मान लो ये हम यहाँ पे ग्रीन लेते हैं इसे, या फिर कोई भी कलर चूज कर सकते हो आप, मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया है। ये स्पोरोफाइट एक छोटी सी स्टेज है, जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे छोटी सी स्टेज है, और यहाँ पे भी जो स्पोरोफाइट है दोस्तों इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, ये ऐसा है। और ये कैसी है? इट इज 2n, ये डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट 2n डिप्लॉयड। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस और नो बोलो। ये है, इतना बड़ा ड्यूरेशन है गैमेटोफाइटिक फेज का, इतना बड़ा ड्यूरेशन है। अगर प्लांट की लाइफ इतनी है तो उनमें से, ये पूरी प्लांट की लाइफ है तो इनमें से इतना बड़ा फेज ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, इसीलिए इसे कहा जाता है दोस्तों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और द डिप्लॉयड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जाइगोट, अ सिंगल सेल है जाइगोट, इसलिए इसे कहा जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मंगेश जरा लक्ष्य दे बेटा, हाँ समझ में आ रहा है? ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। सो जिसमें गैमेटोफाइटिक फेज बड़ी लंबी है, जिसका ड्यूरेशन लंबा, ये है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इज द ड्यूरेशन ऑफ प्लांट लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ प्लांट लाइफ। सपोज 1 साल का ड्यूरेशन है तो मान लो 11 महीने ये गैमेटोफाइटिक फेज में रहेगा प्लांट। मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय गैमेटोफाइटिक फेज, और 1 महीने के लिए स्पोरोफाइट, वो भी गैमेटोफाइट के ऊपर आएगा, ऐसा नहीं कि गैमेटोफाइट गायब हो रहा है, नहीं, वो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। This is the haplontic life cycle, and this is shown by दोस्तों most of the algae like Volvax and Spirogyra. It is shown by, it is present in, ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है दोस्तों, इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है दैट इज most of algae like Volvax and Spirogyra, Volvax and Spirogyra, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Spirogyra, ठीक है? नाउ प्लीज पे अटेंशन। ओके, नाउ दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हमने अभी ये कॉन्सेप्ट लिया है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला, बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ, दोस्तों बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल म्हणजे मेन फेज हे डिप्लॉयड है, मेन फेज का है डिप्लॉयड है। बात करते क्या होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमने ग्रीन कलर चूज किया है स्पोरोफाइट के लिए, हमने ग्रीन कलर चूज किया है, चॉइस किया है फॉर स्पोरोफाइट। तो ये जो ऐसे प्लांट है इनमें दोस्तों, इनमें जो मेन फेज है, मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट, ये देखो, और उसका ड्यूरेशन भी लंबा है, ड्यूरेशन भी लंबा है, ये है ऐसा। मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट, याद रखो। The main plant body is formed by sporophyte, उसका ड्यूरेशन भी लंबा है, और वो कैसा है? डिप्लॉयड फेज है ना। और दोस्तों शॉर्टर ड्यूरेशन और शॉर्ट फेज इज फॉर्म्ड बाय गैमेटोफाइट। ये व्हाइट वाला गैमेटोफाइट है दोस्तों, ये है गैमेटोफाइट। ये क्या है? ये है गैमेटोफाइट,
ये है गैमेटोफाइट। ओके, ये याद रखो। नाउ व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों मेन प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है कैसा है? स्पोरोफाइट यहाँ पे डिप्लॉयड है, यहाँ पे जाइगोटिक मेयोसिस नहीं होता है। स्पोरो जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता है प्लांट जिसमें होते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ। और यहाँ पे छोटी सी फेज, छोटी सी, मान लो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोस्तों ये है गैमेटोफाइट। ये क्या है? ये है गैमेटोफाइट, ये है हैप्लॉइड। और ये स्पोरोफाइट क्या है दोस्तों? स्पोरोफाइट क्या है? ये है डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड फेज ज्यादा है, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये डिप्लॉइड फेज बहुत ज्यादा है, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। मान लो ये प्लांट का लाइफ है पूरा, इतना पूरा पट्टी ग्रीन, मिल्क ग्रीन और व्हाइट, तो ज्यादा से ज्यादा लाइफ उसका कौन से फॉर्म में है? वो स्पोरोफाइट के फॉर्म में है। और थोड़ा सा क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। काही वेळासाठी गॅमेटोफाइट बनन, and that gametophyte यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। that gametophyte is dependent on sporophyte. Are you getting me or not? ये जो गॅमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट आहे टोटली। तुम्ही काही एक प्रश्न विचारू नका, मी काही एक बघत नाहीये, तुम्ही फक्त ह्याच्यावर फोकस करा, ठीक आहे? नसतं मी कमेंट बंद करणार आहे आता। तुम्ही काही एक टाइप नका करू, ते बंद करा ते तुमची फालतूगिरी, ठीक आहे? मी जोपर्यंत हे पूर्ण लिहिणार नाही तोपर्यंत बिलकुल काय बोलायचं नाही, ठीक आहे? हा, मग पुन्हा तुमचं सगळं झाल्याच्या नंतर नाही समजलं तर थोडंसं लक्ष द्या बेटा। हा, तुम्ही असं कधी पण येऊन हे नाही करू शकत, समजलं नाही काय नाही, एकदा मला बोलू द्या आणि मग तुम्ही समजा। हे मी पहिल्या दिवसापासून शिकवतोय गॅमेटोफाइट आणि स्पोरोफाइट काय, ते असं अचानक येऊन नाही समजणार। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आणि मग तुमचे डाऊट घेणार आहे मी। मला एक्सप्लेन बरोबर एक कॉन्सेप्ट तुमच्या डोक्यामध्ये बसू द्या। हे ऐका जरा आता। ये हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें मेन प्लांट बॉडी इज फाउंड बाय डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और उसके ऊपर ये जो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट है वो छोटा होता है इन एंजियोस्पर्म। आप सबको पता है, मैंने क्लियर कट बताया है कि इन एंजियोस्पर्म दोस्तों, इन एंजियोस्पर्म दैट मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड बाय, अब बोलो, मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड बाय how many cell? In angiosperm male gametophyte is formed by 3 cell structure, and फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल का होगा? इन एंजियोस्पर्म 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो एक प्लांट कंपेयर करो दोस्तों, कोई भी प्लांट, एक बैनियन ट्री ले लो या पीपल ट्री या मैंगो ट्री या कोई भी बड़ा वाला कोई भी प्लांट ले लो, उसमें कितने सेल होंगे? बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल होंगे। एंड कंपेयर टू दैट बिलियंस सेल, और कंपेयर टू दैट ह्यूज जायंट प्लांट body, and compare that plant body with that 3-celled male gametophyte. Compare that plant body with 3-celled male gametophyte. Compare that huge plant body with 7-celled female gametophyte. आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी फेज है? वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बहुत बड़ा है? आपको लगता है? आपको लगता है? नहीं। इसीलिए ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि मेन प्लांट बॉडी इज फाउंड बाय डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ओके, और गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होगा पर वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? उसके एग्जांपल है दोस्तों, दैट इज, याद रखो, उसके एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंड एक अलगी है जिसका नाम है फ्यूकस। कैसे याद रखेंगे? एफडी, फ्यूकस इज अ डिप्लॉन्टिक। इसमें ये ऐसी अलगी है जिसमें ना जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द अलगी में जाइगोटिक मियोसिस होगा। क्वेश्चन नंबर नीट 2019 में क्वेश्चन आता है कि जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट इन, सिंपल आंसर था अलगी। बट अगर अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले गए कि मोस्ट ऑफ द अलगी शो जाइगोटिक मियोसिस एक्सेप्ट, आंसर इज फ्यूकस, क्योंकि इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अभी सर आपने हमें बताया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज जो है, ये जो हैप्लॉइड फेज है दोस्तों, नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये जो हैप्लॉइड फेज है उसका ड्यूरेशन ज्यादा है, यन वाला। और जो डिप्लॉइड फेज है, जो डिप्लॉइड फेज है, ये जो डिप्लॉइड फेज है उसका ड्यूरेशन कम है। ये जो डिप्लॉइड फेज है उसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है। कम है यानी बहुत ज्यादा 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 बहुत ही
कम है, बहुत ज्यादा कम है। और यहाँ पे डिप्लॉयड फेज का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है और हैप्लॉयड फेज का ड्यूरेशन बहुत कम है। अभी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं ताकि और पिक्चर क्लियर हो जाए। नाउ इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोस्तों मान लो बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इंटरमीडिएट स्टेज है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही what is the criteria to define the dominant phase? What is the criteria? The criteria to define dominant phase is the duration of that phase. जो ज्यादा ड्यूरेशन, जिसका ज्यादा ड्यूरेशन रहेगा वो डोमिनेंट फेज आहे. आता तुम्हाला सांगतो. नाउ लेट्स कंपेयर जो अभी काल काय झालं, केंद्रामध्ये मंत्रीचा विस्तार झाला, मंत्रिमंडळाचा विस्तार, आणि महाराष्ट्राला 4 मंत्रिपद मिळाली. ओके, असो. नाउ भारताला स्वातंत्र्य मिळालं 1947 ला आणि भारतामध्ये पहिल्या सुरू सरकार स्थापन झालं समजा प्रॉपर प्रजासत्ताक 1951 ला किंवा 1950 ला सॉरी. नाउ तुम्ही मला सांगा, 2 आता पक्ष आहेत भारतामध्ये, 2 पक्ष आहेत. 2014 पर्यंत सगळ्यात डॉमिनंट पक्ष कुठला होता, ज्याचं ड्युरेशन सगळ्यात लंब होतं? कुठला पक्ष होता? पक्ष एक त्याची सत्ता होती समजा, त्याचे बाकीचे संघटित लोक होते काय? काँग्रेस. 2014च्या अगोदर काय होतं? काँग्रेसच होतं ना. 7-8 वेळेस त्यांचा पीएम झाले, बरोबर आहे. मग आता एवढ्या कालावधीत कधीतरी एखाद दुसरं सरकार आलंय काँग्रेस सोडून, कधीतरी एखादं जनता दलचं सरकार आलं होतं, काही दिवस वाजपेयींचं सरकार आलं होतं, बरोबर आहे ना, 99% समथिंग. थोडस पण डॉमिनेंट पक्ष कुठला आहे? पीएम कोणाचा राहिलेला आहे जास्त वेळ? पीएम किसका था इतने सालों में? ज्यादातर पीएम किसका था, किस पार्टी का पीएम था? कांग्रेस. तो कांग्रेस इज डोमिनेंट. भले ही 1-2 टर्म में एक बार बीजेपी का था और एक बार जनता दल का, पर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का था. तो कांग्रेस का ड्यूरेशन लंबा है एंड कांग्रेस वाज अ डोमिनेंट पार्टी बिफोर दैट इज राइज ऑफ मोदी. बट अभी 2014 के बाद क्या है? 2014 में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है और 2000 ये अभी जो 17-18 जो हुआ था, ओके 19 शायद, वहां पे भी 2019 से भी बीजेपी का गवर्नमेंट है. नाउ अभी डोमिनेंट कौन है? अभी डोमिनेंट कौन है? किसका ड्यूरेशन चल रहा है लंबा और आगे भी चलने के चांसेस किसके है? बीजेपी का. तो जिसका ड्यूरेशन लंबा वो डोमिनेंट फेज, जिसका ड्यूरेशन लंबा वो डोमिनेंट फेज. जो सरकार बनाएगा वो डोमिनेंट फेज, जो सरकार में रहेगा वो डोमिनेंट फेज. समझे? जैसे जिसका ड्यूरेशन लंबा वो डोमिनेंट फेज और सरकार बनाएगा मतलब जो प्लांट बॉडी बनाएगा वो डोमिनेंट फेज. अब क्लियर है? तो दोस्तों ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है ये प्लांट बॉडी बनाता है और ये जो स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल जाइगोट, इसलिए ये जो पूरा लाइफ साइकिल है इसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक. बट इन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो आपको रूट स्टेम और लीफ दिख रहे हैं, कोई भी अगर प्लांट आपको दिख रहा है, ओके, अगर आपने किसी लेमैन को पूछा तो ये क्या है, वो बोलेगा ये मैंगो ट्री है. और आपने पूछा कि ये कौन सा फेज है उसका, ओके, वो बोलेगा अरे ये मुझे पता नहीं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी. तो आप बोलोगे ये स्पोरोफाइटिक फेज है. ये जो रूट स्टेम और लीफ आते हैं ये स्पोरोफाइटिक फेज में आते हैं. अभी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे देश है या फिर स्टेट है जहां पे अब तक किसी एक पार्टी ने, सपोज 10 साल का 10 या फिर 20 साल का ड्यूरेशन है, तो 10 साल एक पार्टी ने राज किया, 20 साल दूसरे बाकी बचे हुए 10 साल दूसरे पार्टी ने राज किया. सपोज 20 साल ड्यूरेशन है एक स्टेट का, बन के 20 साल बने उसे, पहले 10 साल किसी एक पार्टी ने और फिर बाकी के 10 साल किसी एक पार्टी ने. तो ये दोनों भी कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं है, पर यहाँ पे भी डोमिनेंट हो सकता है. बट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एक फेज डोमिनेंट होती है नो डाउट, पर यहाँ पे जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. बात करते किस तरह से, सपोज मान लो दोस्तों अभी यहाँ पे ये यहीं पे रोकता हूं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं. इज दैट क्लियर? ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं.
आगे चलते और बात करते दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ हेप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि ये दो जगह पे है। ये जो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, आपके सभी जो क्वेश्चन है बाजू में लिख के रखो, मैं आंसर करने वाला हूं। हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दोस्तों, इसमें ना दो फेजेस है, यहाँ पे भी दो फेजेस है, बट बात करेंगे कि इन ब्रायोफाइट क्या होता है और इन टेरिडोफाइट क्या सिचुएशन है। इन ब्रायोफाइट और इन टेरिडोफाइट, इन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ब्रायोफाइट में दोस्तों जो डोमिनेंट फेज होगी ना, ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट होता है। ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है। मान लो यह है गैमेटोफाइट, यह है गैमेटोफाइट, पर इसका जो स्पोरोफाइट होगा ये इतना भी छोटा नहीं है जैसे कि बाकी वाला डिप्लॉन्टिक का था। स्पोरोफाइट भी होता है, पर यहाँ पे स्पोरोफाइट भी है, पर इतना छोटा ड्यूरेशन नहीं, कंपैरेटिवली अच्छा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है दोस्तों, इसे कहते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नो डाउट इन ब्रायोफाइट, नो डाउट इन ब्रायोफाइट दोस्तों, ये जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइट है, नो डाउट इन ब्रायोफाइट, ये जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइट है, ये जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है, जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइट, यहाँ पे याद रखो हेप्लॉइड गैमेटोफाइट ये डोमिनेंट फेज होता है ब्रायोफाइट में। किसकी? क्योंकि इसका ड्यूरेशन ज्यादा है। और ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट दिख रहा है आपको, ये डोमिनेंट नहीं है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या है दोस्तों? ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। दिस इज द सिचुएशन इन ब्रायोफाइट। पर ड्यूरेशन इतना भी कम नहीं है, स्पोरोफाइटचं ड्यूरेशन इतकं पण कमी नाही की ह्याला डिप्लॉन्टिकच म्हणा, म्हणून ह्याला म्हणायचं हेप्लोडिप्लॉन्टिक। अभी क्या होगा टेरिडोफाइट में? टेरिडोफाइट में क्या सिचुएशन है? इन टेरिडोफाइट याद रखो दोस्तों, इन टेरिडोफाइट सिचुएशन इज लाइक दिस। सो इन टेरिडोफाइट फर्न सिचुएशन कुछ ऐसी है दोस्तों, टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज नो डाउट स्पोरोफाइट है। डोमिनेंट फेज का है? स्पोरोफाइट है, लक्षात ठेवा। सपोज ये टेरिडोफाइट है तो डोमिनेंट फेज नो डाउट क्या है? स्पोरोफाइट है। कहां चला गया? डोमिनेंट फेज ये स्पोरोफाइट है, फोटोसिंथेटिक है, सब है, सब है। ये डिप्लॉयड डोमिनेंट फेज है, ये स्पोरोफाइट है, याद रखो। ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो फेज है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है दोस्तों, ये क्या है? ये डोमिनेंट फेज है इन टेरिडोफाइट, ये डोमिनेंट फेज है इन टेरिडोफाइट। और जो हेप्लॉयड गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट नहीं है। ओके, जो हेप्लॉयड गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट तो नहीं है, पर बताता हूं क्या है। तो मान लो ये है गैमेटोफाइट। ओके, ये क्या है? गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट। ग्रीन इज अ गैमेटोफाइट। ओके, जी फॉर गैमेटोफाइट, जी फॉर ग्रीन। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइट है, ये जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट में, इज इट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट? ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। ये डिपेंड है क्या? ठीक है, कलर चेंज झाला का? कलर चेंज झाला का? ओके ओके, ठीक है, चला, ओके, कलर चेंज झाला का? कोई बात नाही, कोई बात नाही। कलर चेंज झाला म्हणलं, थांबा 2 मिनिट। ओके, रुक जाओ। स्पोरोफाइट का ग्रीन लिया है, सॉरी। सो ब्रायोफाइट में क्या है दोस्तों? ब्रायोफाइट में, इन ब्रायोफाइट, पहले से लिखता हूं, इन ब्रायोफाइट कलर चेंज झाला, सॉरी। सो इन ब्रायोफाइट क्या है? इन ब्रायोफाइट, इन ब्रायोफाइट क्या है दोस्तों? इन ब्रायोफाइट, ओके, हमने क्या लिया है? गैमेटोफाइट को क्या कलर लिया है? व्हाइट। ओके, सो इन ब्रायोफाइट दोस्तों, दैट इज गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज होता है। इन ब्रायोफाइट
गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज। जरा लक्ष्य दे रहा था, यह है गैमेटोफाइट व्हिच इज अ डोमिनेंट फेज, यह है गैमेटोफाइट व्हिच इज डोमिनेंट फेज, यह है गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज। ओके, एंड यह है स्पोरोफाइट जो कि इट इज नॉट डोमिनेंट, पर इसका भी ड्यूरेशन अच्छा खासा है, भले डोमिनेंट नहीं पर ड्यूरेशन अच्छा खासा है। सो इन ब्रायोफाइट दोस्तों, दैट इज हैप्लोइड गैमेटोफाइट जो है, हैप्लोइड गैमेटोफाइट जो है, हैप्लोइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेज है। हैप्लोइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। और ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ये डोमिनेंट फेज है, मींस इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक सब है। और ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ये दोस्तों डिपेंडेंट है, किसके ऊपर? डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, आइदर पार्शियली और टोटली। It is partially dependent on gametophyte in case of mosses, and it is totally dependent on gametophyte in case of liverwort. MCQ. Now, तो सिचुएशन क्या है? तो ये हो गया दोस्तों इंटेरिडोफाइटा और इंटेरिडोफाइट एग्जैक्ट उल्टा है। भले ड्यूरेशन यहां पे डोमिनेंट फेज क्या है? स्पोरोफाइट है। ये देखो, यहां पे डोमिनेंट फेज जो है वो है स्पोरोफाइट। Sporophyte is a dominant phase. Sporophyte is dominant phase. Sporophyte is dominant phase. Okay, यहाँ के रुकते हैं। Sporophyte is dominant phase. Now please pay attention. और दोस्तों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे याद रखो, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है, diploid sporophyte, enteridophyte, main plant body is formed by diploid sporophyte, which is having longer duration and it is dominant phase. It is dominant phase. आणि लक्षात ठेवा, that is haploid gametophyte. ये जो है haploid gametophyte, it is not the dominant stage. ये है दोस्तों haploid gametophyte. टेरिडोफाइट का ये जो haploid gametophyte होता है, ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है ना टेरिडोफाइट का, जस्ट वेट, ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है ऑफ टेरिडोफाइट, बट ये कैसा दोस्तों, ये ना थोड़ा सा अलग से लिखता हूं, ये इंडिपेंडेंट है। कैसा है? ये इंडिपेंडेंट है। इसे क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं आत्मनिर्भर, इसे बोलते हैं स्वाभिमानी गैमेटोफाइट, इसे बोलेंगे आत्मनिर्भर गॅमेटोफाइट या फिर स्वाभिमानी या फिर आत्मनिर्भर। मोदीजीच्या शब्दामध्ये सांगायचं झालं तर आत्मनिर्भर गॅमेटोफाइट किसमें होगा? आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट दोस्तों ये टेरिडोफाइट का फीचर है, टेरिडोफाइट का फीचर है। प्लीज रिमेंबर दिस, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दिस इज कॉल्ड हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल। ह्याला आपण म्हणू, याला म्हणायचं असतं हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाईफ सायकल। बघा ब्रायोफाइट मध्ये आता तुम्हाला कळलं व्हॉट इज द डॉमिनंट फेज? हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट इज डॉमिनंट फेज, कारण की याचा ड्युरेशन जास्त आहे, इट इज डॉमिनंट फेज. अँड स्पोरोफाइट इज डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट. ते ग्रीन कलर म्हणजे ते ग्रीन आहे किंवा फोटोसिंथेटिक असा बिलकुल नाही हा, इज डिपेंडंट ऑन द गॅमेटोफाइट. अँड स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट in mosses and sporophyte is totally dependent on gametophyte in liverwort. दोन ग्रुप आहेत ना ब्रायोफाइट मध्ये, समझे आप? ओके. In pteridophyte the dominant phase is diploid sporophyte. In pteridophyte dominant phase is diploid sporophyte. In pteridophyte the dominant phase is diploid sporophyte. ओके. एंड दोस्तों गैमेटोफाइट छोटा फेज है, बट ये कैसा है? ये इंडिपेंडेंट है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट है। इसको क्या बोला जाता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है? इसे बोला जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है, ये जो आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट है इसे बोला जाता है, एनीवन? बहुत बढ़िया यार, प्रतीक, श्रीधर, वैभवी, इसे कहा जाता है प्रोथैलस, इसे बोला जाता है प्रोथैलस, इसे बोला जाता है प्रोथैलस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ ये जो, सॉरी,
ये जो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दोस्तों? अदर एग्जांपल ऑफ हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओके, algae MCQ, algae which have हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें 3 algae है, algae which have हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसमें 3 algae है। नंबर 1 दैट इज दोस्तों, नंबर 1 एक्टोकार्पस, क्या नाम है? एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। नंबर 2 पे दोस्तों दैट इज पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड केल्प, केल्प। These are the 3 algae which have heplodiplontic life cycle, and this is famous MCQ. These are the 3 algae which have heplodiplontic life cycle. This is a famous MCQ. Kelp, kelp, याद रखेंगे। Now how to remember this? कैसे याद रखेंगे इसको? Now please pay attention. तो दोस्तों एक चैनल है ईपिक चैनल, आपको पता है ईपिक चैनल, जिसके ऊपर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में या फिर इंडिया के कल्चर के बारे में चलता है ईपिक चैनल। ओके, तो ये जो ईपिक चैनल है, सपोज वैसे कुछ चैनल बनाता हूं मैं, मान लो कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ ऐसा ईपिक चैनल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ ऐसा है, दैट इज EPK, EPK, epic, epic, EPK, epic, EPK, epic। और वो जो चैनल है दोस्तों, उसका सिंबल मान लो कुछ ऐसा है, उसका जो सिंबल है वो चैनल, उसका सिंबल मान लो कुछ ऐसा है, ये ऐसा दिखता है वो चैनल, उसका सिंबल कुछ ऐसा है, या फिर थोड़ा सा हटा लेते हैं, मान लो कुछ ऐसा सिंबल है उस चैनल का। ओके, कुछ ऐसा सिंबल है। ओके, कौन सा चैनल है? एपिक एचडी, कुछ ऐसा सिंबल है। ओके, ये उसका लोगो है चैनल का, EPK, एपिक, ये उसका लोगो है। और कैसा है वो चैनल? वो कैसा चैनल है? सादा चैनल नहीं है, कैसा चैनल है वो? अल्ट्रा एचडी है। कैसा चैनल है वो? एचडी चैनल है। कैसा चैनल है वो? एचडी चैनल है। एपिक एचडी चैनल का ये मैंने लोगो दिखाया है यहाँ पे। एपिक एचडी का मतलब क्या है? एपिक एचडी मींस Ictocarpus polysyphonia, polysyphonia and kelp have haplodiplontic life cycle. Are you getting me or not? Haplodiplontic life cycle. HD म्हणजे haplodiplontic, epic, EPK, Ictocarpus polysyphon and kelp have haplodiplontic life cycle. Is that clear? Is that clear? Okay, done. Okay, अब मेरा खत्म हो गया। दिस इज एन लाइफ साइकिल। कल ही मैंने बात की है टोटल कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज का मतलब क्या होता है? वो फोटोसिंथेटिक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री लिविंग है। ओके, और वो मेन प्लांट बॉडी बनाती है। ओके, और गैमेटोफाइट गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। अभी आपके क्वेश्चन, अभी बहुत टाइम है अपना हमारे पास, 15 मिनट है, अब जो चाहे पूछ सकते हो। टेरिडोफाइट डिप्लॉन्टिक नहीं है बेटा, AIB 1224, टेरिडोफाइट इज नॉट डिप्लॉन्टिक, इट इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक। हाँ, मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट आहे, पण त्याच्यातला गॅमेटोफाइट हा कसा आहे बेटा? हा इंडिपेंडेंट आहे, तो स्वतः फोटोसिंथेटिक आहे, फ्री लिव्हिंग आहे, म्हणून ते तसं नाही। आता जरा लक्षात द्या, आता जरा लक्ष द्या, PK संपला आहे, टू गव्हर्नमेंटच्या कोलॅशनला हेप्लोडिप्लॉन्टिक म्हणू शकतो का? तसं म्हणता येईल हा। टेरिडोफाइट तर हा सर, can we say duration of haplodic life cycle gametophyte and duration of diplontic life cycle sporophyte are same? नहीं श्रीकांत बेटा, इसमें सेम नहीं है। जो डोमिनेंट है उसका ड्यूरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। आप देखो जरा, यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट है तो उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है, पर स्पोरोफाइट इतना भी कम नहीं है। यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है तो उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली। नाउ प्लीज पे अटेंशन, अभी यहाँ पे आपको कंपैरिजन मिलेगा। किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है क्या होता है। सो लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें बेटा, योगेश्वरी राजपूत, एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट हैव 2 जनरेशन इन देयर लाइफ
one is gametophyte and sporophyte. Now what is meant by gametophyte? It is an haploid stage and which have ability to produce gamete. What is meant by sporophyte? It is a diploid stage or which produces spore. गैमेटोफाइट हेप्लॉइड है तो हेप्लॉइड गैमेट बनेगा बाय माइटोसिस, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है और हेप्लॉइड स्पोर बनेगा बाय मियोसिस. Depending on duration of phase, it is decided that which phase is dominant or not. So if the duration of one phase is longer and if that particular phase from the main plant body, such phase is known as dominant phase. So in algae and bryophyte, gametophyte is dominant phase and in pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, sporophyte is the dominant phase. ये हो गया. आगे बढ़ते हैं. So haplontic life cycle के example क्या है? In most of the algae like Valves and Pyrogyra, आप यहाँ का ड्यूरेशन कंपेयर करके देखिए. जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है, जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है वो डोमिनेंट फेज है. ओके, वो जो हेप्लॉइड डोमिनेंट फेज क्या है दोस्तों, सॉरी, जो डोमिनेंट फेज क्या है यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है वो है हेप्लॉइड गैमेटोफाइट. यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है, इन दिस केस द डोमिनेंट फेज कौन है? डोमिनेंट फेज इज दोस्तों दैट इज गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइटिक फेज जो कि हेप्लॉइड है, ओके. और छोटी सी एक डिप्लॉइड स्टेज है जो कि एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल ही रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए पूरा लाइफ साइकिल हेप्लॉइड है, इसलिए हेप्लॉइड. यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट है, याद रखो यहाँ पे क्या है, इन दिस केस दोस्तों, इन दिस केस इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट इज डोमिनेंट फेज क्या है? डोमिनेंट फेज जो है, दैट डोमिनेंट फेज इज दोस्तों, डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, दैट इज डिप्लॉइड. और छोटा सा 3 या 7 सेल गॅमेटोफाइट होगा, इसलिए डिप्लॉन्टिक. आता हे ड्युरेशन इथपर्यंत आहेत, कंपेअर करा. हे ड्युरेशन कुठपर्यंत आहेत? इथपर्यंत आहेत. समजा कुठं कंपेअर करा, ह्या प्लसच्या पुढे ड्युरेशन चालले. कंपेअर दिस, हे प्लस साइन आहे त्याच्या पुढे ड्युरेशन चालले, प्लस साइन के आगे भी ड्यूरेशन जा रहे. नाउ प्लीज कंपेअर दिस. अभी आता बघा थोडस इकडे चाललंय, समजायला लागलंय. म्हणून इन ब्रायोफाइट असं तुम्ही म्हणू शकणार नाही की यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन इज सेम. नहीं, जो डोमिनेंट है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा ही होगा जो डोमिनेंट नहीं है उससे. ओके, ठीक है. कळतंय आता? कळतंय? पीके संपलाय. ओके, टाटा बाय बाय पीके, टाटा बाय बाय. ओके, बाय बाय. पीके कंप्लीट झालाय. थांबा 2 मिनिट, आणखीन थोडं बाकी सर. ओके, हा आपण किती काय कंटेंट दिले, किती लेक्चर झालेत? उन्मेष म्हणते 32 लेक्चर झाले. ह्या 32 लेक्चर मध्ये तुम्हाला मी खूप बॉटनीचा बेस आपण पक्का केलाय. ओके, तेवढे टॉपिकला रिपीटर जर असताल तर रिपीटरला हे एवढे वेळ लागत नाही, पण याच्यामध्ये स्पोरोफाइट काय, गैमेटोफाइट काय, बेसिक हेप्लॉइड काय, डिप्लॉइड काय, ट्रिप्लॉइड काय. ओके, मैंने 30% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म यही आपको पढ़ाया है ताकि आपको डिटेल में समझ में आए. ठीक है सर, प्लीज टेल सम कॉमन एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म व्हिच विल सी अराउंड अस. समृद्धि देखा है मैंने, साइकस बताया है, साइकस, पाइनस, सेड्रस, गिंगो बायोलोमा, दीज आर जिम्नोस्पर्म. और जो भी आपको प्लांट देख रहे हैं बाकी के, जो भी मैंगो बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, रोज, ओके, लोटस, जो भी फिर सीरियल्स है, जो भी सीरियल, जवार, बाजरा, ओके, मूंग, सोयाबीन, ऑल दीज आर एंजियोस्पर्म. जिसको फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म है, जिसको फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म है. सर इन जिम्नोस्पर्म फीमेल सेक्स ऑर्गन मेगास्पोरोफिल और आर्चिगोनियम इज द फीमेल गैमेटोफाइट. बेटा आयुष मुळे काय क्वेश्चन विचारलाय, इन जिम्नोस्पर्म फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम ही है. इन जिम्नोस्पर्म फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम ही है, ये याद रखो. वो मेगास्पोरोफिल उसका एक पार्ट है, उसका मीन्स उसमें भले ही आर्चिगोनियम होती है पर मेगास्पोरोफिल इज अ पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, बट फीमेल सेक्स ऑर्गन इन जिम्नोस्पर्म इज आर्चिगोनियम. आता जरा लक्ष द्या. नाव तुमच्याकडे एनसीईआरटी कोणाकडे एमटीसीचं बुक आहे का? आता तुम्हाला काय करायचं आहे, असा टॉपिक संपलेला नाहीये, जरा लक्ष द्या. टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है. अभी दोस्तों इसके पीछे कुछ एक्सरसाइज है. एक्चुअली क्या है ना, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. ये जो टॉपिक है मान लो, इसके पीछे एक एक्सरसाइज होती है हर एक टॉपिक के पीछे. समरी में पढ़ता हूं, समरी आप
ये किताब निकालो, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। ओके, फ्यूकस एंड अलगा डिप्लॉन्टिक के लास्ट समरी पढ़ता हूं, समरी हर टॉपिक के बाद हम ये समरी पढ़ेंगे। समरी निकाला है सबने? ओके ठीक आहे, खूप मोठा नाही, खूप छोटा आहे पीके, मी तसा शिकवलाय त्याला, खूप छोटा टॉपिक आहे हा, हा टॉपिक मोठा नाहीये, हा तुम्हाला बेस तयार व्हावा म्हणून आहे। ओके जरा लक्ष द्या आता काय था, एंजियोस्पर्म के कंफ्यूजर देने वाला था। ओके समरी 43 पेज नंबर। आता बघा कसं पुणे मुंबई हायवे सारखं वाटतं, एकदम सुसाट सुटल्यासारखं, प्रत्येक गोष्ट काय लागते। प्लांट किंगडम इंक्लूड अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके डन। पढ़ना कैसे है, 2 फुल स्टॉप के बीच में एक ब्रेक लेने का है और सोचना है। ओके डन। ये 5 डिवीजन है। अलगी आर क्लोरोफिल बेरिंग, सिंपल, थैलॉइड, एटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी सोचना है, मतलब क्या है, तो मैं पढ़ते कैसे है। क्लोरोफिल बेरिंग मीन्स इसमें क्लोरोफिल है, सिंपल मीन्स शायद इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, थैलॉइड मीन्स अ प्लांट बॉडी व्हिच डज नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ, एटोट्रॉपिक मीन्स खुद का खाना खुद बनाती है, फोटोसिंथेटिक है, एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स इसकी हैबिटेट ज्यादातर अलगी पानी में पाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट पजेस्ट and the type of food stored, algae are classified into 3 classes, namely chlorophyce, pheophyce, rhodophyce. MCQ. What is the basis of classification? What is the basis of classification? Depending on the type of pigment, chlorophyll A या B है, chlorophyll A या C है, chlorophyll A या D है, और type of food stored, starch होता है या फिर laminarin या क्या है, मैनिटॉल है या फिर फ्लोरोडिन स्टार्च है, उसके ऊपर 3 क्लासेस है algae के, Chlorophyce, Pheophyce, Rhodophyce. Chlorophyce means green algae, Pheophyce means brown algae, or Rhodophyce means red algae. Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different type of spore, and sexually by formation of gamete, which may show isogamy, anisogamy, oogamy. तो algae में तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन algae commonly occur by fragmentation, MCQ. Asexual reproduction commonly occur by formation of asexual spore, and the most common are zoospore. And sexual reproduction occur by fusion of gamete. Or there are 3 mode of sexual reproduction: isogamy, anisogamy, oogamy. Now, what is meant by anisogamy? Fusion of similar gamete. Example क्या है anisogamy की? मुझे पता होना चाहिए। Spirogyra example है उसका। Sorry, isogamy means fusion of similar gamete. क्या example है उसके? Example क्या है? Spirogyra उसका example है। Okay. स्पायरोगैरा, फिकोनिस पता ना आपको, स्पायरोगैरा उसका एग्जांपल है, क्लैडोफोरा उसका एग्जांपल है। ओके यूलोथ्रिक्स उसका एग्जांपल है, ये याद रखो। अनाइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट, उसके क्या एग्जांपल है, मिस यूडोरिना अनाइसोगैमी। ऊगैमी, फ्यूजन ऑफ स्मॉल एंड मोटाइल मेल गैमेट विद द लार्ज एंड स्टैटिक फीमेल गैमेट इनसाइड द ओवोनियम, इसे कहते हैं ऊगैमी। उसके एग्जांपल क्या है, वॉल्वैक्स एंड फ्यूकस। और क्लाइमेटोमोनासिस algae which show both isogamy as well as anisogamy। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा सोचना है, ऐसा हर सेंटेंस पढ़ने के बाद सोचना है। हम क्या करते हैं, खाली पढ़ते जाते हैं, अरे सर मैंने 2 बार पढ़ा फिर भी मार्क्स नहीं आए, गलत बात है। अभी ये हो गया algae का पैराग्राफ। ब्रायोफाइट, आता मी असं वाचायचं, एकदा वाचून दाखवतो। ब्रायोफाइट आर प्लांट which can live in soil but are dependent on water for the sexual reproduction। तो आगे हमारे दिमाग में आना चाहिए, hence bryophyte is called as a amphibians of plant kingdom। Their plant body is more differentiated than that of the algae। मतलब क्या है, मतलब भले यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है, बट दोस्तों रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो कि algae में नहीं है। Bryophyte is thallus like and prostate, so plant body, यहाँ पे it means plant body is thallus like और prostate और erect। तो यहाँ पे मुझे प्रोस्टेट का मतलब पता नहीं है, तो मैं डिक्शनरी खोल लूंगा। प्रोस्टेट म्हणजे सरपटच जाणार आहे, वेली सारखं झाड, त्यामुळे प्रोस्टेट। इरेक्ट म्हणजे जे उभा राहतं ते इरेक्ट, जे सरपटच जातं वेली सारखं ते प्रोस्टेट। तशी प्लांट बॉडी असू शकते, अँड अटॅच टू द सबस्ट्रॅटम बाय राइझोइड। व्हाट आर द राइझोइड? दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर and present only in bryophyte, and rhizoids are unicellular in liverwort and they are multicellular in mosses। MCQ. They possess root-like, they means bryophyte possess root-like, leaf-like and stem-like structure. The bryophyte are divided into liverwort and mosses. The plant body of liverwort is thalloid and dorsoventral,
flattened होती है, whereas mosses have upright. Plant body of leaf orbit is thalloid and dorsoventral flattened, whereas mosses have upright slender axis bearing spirally arranged leaves. तो लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, सर्कुलर है, स्पाइरल है, कैसी है, तो स्पाइरली अरेंज्ड है. इसके ऊपर भी एमसीक्यू है. नाउ मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट. ब्रायोफाइट एंड दैट गैमेटोफाइट, इट म्हणजे गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट बियर मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज एंथ्रिडिया and female sex organ called as a archegonia. The male and female gamete, the male gamete क्या बोला जाता है, एंथेरोजॉइड, और फीमेल गैमेट को एग. So male and female gamete produce fuse to form zygote, which produces multicellular body called as a sporophyte. Zygote से embryo, embryo से sporophyte. It produces, और it means sporophyte, it means जो लास्ट वाला होता है वो, it means sporophyte produces haploid spore and the spore again germinate to form gametophyte. अभी टेरिडोफाइट का पैराग्राफ. इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ. एमसीक्यू, किसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आते हैं, तो टेरिडोफाइट में. दीज ऑर्गन पजेस मींस ये जो रूट, स्टेम और लीफ है, पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, मींस दे आर वैस्कुलर प्लांट. स्पोरोफाइट वियर स्पोरेंजिया व्हिच प्रोड्यूसेस स्पोर. स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करेगी. द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट and that gametophyte require cool damp place to grow. The gametophyte bear male and female sex organ called as antheridia and archegonia. यहाँ पे भी होते हैं respectively. Male sex organ antheridia, female sex organ archegonia. Water is required for a transfer of male gamete to archegonium, where zygote is formed after fertilization. Zygote produces sporophyte. Same. Then gymnosperm are the plant in which ovules are not enclosed by any ovary wall. So there is a naked ovule. After fertilization, seed remain exposed, and therefore these plants are called as a naked seeded plant. Seed तो है, naked seeded plant. Gymnosperm produces microspore and megaspore, means because they are all are heterosporous, which are produced in microsporangia and megasporangia borne on the sporophyll. The sporophyll, either microsporophyle or megasporophyle, are arranged spirally on axis to form male and female cone respectively. The pollen grain germinate and pollen tube releases the male gamete into the ovule, where it fuses with the egg cell in archegonia. Following fertilization, zygote develop into embryo and ovule into seed. In angiosperm, male sex organ उसे कहते हैं stamen and female sex organ उसे कहते हैं pistil or carpel are born in a flower. Each stamen consists of filament and anther, and the anther produces pollen grain, which is male gametophyte after meiosis. Anther produces pollen grain after meiosis, or pollen grain is called as a male gametophyte. The pistil consists of, ते angiospermचे जरा कन्फ्युजर आठवण करून द्या. The pistil consists of an ovary enclosing, pistil means carpel consists of ovary enclosing one to many ovules. Within the ovule is a female gametophyte, उसका दूसरा नाम है embryo sac, which contain egg cell. The pollen tube enter the embryo sac, where two male gametes are discharged into the cytoplasm of synergids. One male gamete fused with the egg cell called as a synegamy, and other fused with the diploid secondary nucleus called as a triple fusion. This phenomenon of two fusion is called a double fertilization and is unique to angiosperm. It is not present in any division except angiosperm. Angiosperm are divided into two classes, that is dicotyledon and monocotyledon. Difference मैंने देखा है. During the life cycle of any sexually reproducing plant, there is alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. However, different plant group have, as well as individual, may show different pattern of life cycle, either haplontic, diplontic, or intermediate. नाउ एक्सरसाइज का वेळ झाला नाही. हे एक्सरसाइज पण बघायचंय. हे मी ब्रीफली तुम्हाला कळल एक्सरसाइज काय आणि एनसीईआरटी एक्झाम्पलर असं आहे, आणि याच्यानंतर एनसीईआरटी एक्झाम्पलर पण बघायचंय. हे असं आहे, तुम्ही हे करायचंय, तुम्ही तयारी करायचंय, हे सगळं वाचायचंय, तुम्ही हे सगळं वाचायचंय. ओके, लास्ट पॉइंट बोलतो, लक्षात ठेवा, लास्ट पॉइंट बोलतो. काही कन्फ्युजर आहेत तर लक्ष द्या. अँजिओस्पर्म मध्ये माहित पाहिजे कन्फ्युजर म्हणजे काय, जरा लक्ष द्या. व्हॉट इज मीन बाय माइक्रोस्पोरोफिल, लिहून दिलेलं आहे पण तरी पण सांगतो. माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है स्टेमन. ओके, एंजियोस्पर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म. एंजियोस्पर्म आईएमपी टर्म, टर्मिनोलॉजी. दोस्तों माइक्रोस्पोरोफिल कभी मत भूलना. माइक्रोस्पोरोफिल मतलब क्या है, इसका मतलब होता है स्टेमेन, मेल सेक्स ऑर्गन है, हमेशा याद रखो.
मेगास्पोरोफिल, ये मैंने लिख के दिया है, फिर भी एक बार, मेगास्पोरोफिल कभी मत भूलना, इसका मतलब होता है दोस्तों दैट इज, मेगास्पोरोफिल मींस दोस्तों दैट इज पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल या फिर उसका दूसरा नाम है कार्पेल, ये याद रखो। ओके, नाउ ये हो गया, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका मतलब होता है दोस्तों, एक शब्द है उसके लिए, हमने इसका जिक्र नहीं किया था, वो है पोलन सैक, जिसमें पोलन ग्रेन होते हैं। और मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम उसका मतलब होता है दैट इज ओविल, उसका मतलब है ओविल। नाउ और दोस्तों दैट इज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट मीन्स पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन याद रखो। और फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है दोस्तों दैट इज एम्ब्रियो सैक। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एम्ब्रियो सैक, समझे आप? ये क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक नमूना दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसा आता है। ओके, हो गया ये। अभी एमसीक्यू ऑफ द डे लेता हूँ, इसी के ऊपर कैसा आएगा, इंपॉर्टेंट टर्म क्लियर है। नाउ दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म दोस्तों मान लो, इन एंजियोस्पर्म जैसे कि, इन एंजियोस्पर्म कॉमा जैसे कि मान लो, जैसे कि मेगास्पोरेंजियम, इन एंजियोस्पर्म मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओविल। हे तुम्ही प्रश्न सोडा, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओविल, then microsporangium, microsporangium is equal to what? ऑप्शन में ऐसे आएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन में, ऑप्शन देखो, सब कंफ्यूजन, सब कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। नंबर 2 एंथर, एंथर। नंबर 3 that is stamen, stamen। नंबर 4 पोलन सैक। बोलो अभी क्या है आंसर? अभी तो लिखा है मैंने, क्या है आंसर? 4 आंसर है पोलन सैक। क्वेश्चन काल आम्हाला काय विचारायचं? ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको लगता है आसान क्योंकि मैंने टर्मिनोलॉजी पहले ही क्लियर कर दी थी। दूसरा है इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म दोस्तों, इन एंजियोस्पर्म मान लो, इन एंजियोस्पर्म ऐसा लगता है कि दैट इज फॉर एग्जांपल, इन एंजियोस्पर्म फॉर एग्जांपल माइक्रोस्पोरोफिल, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोफिल is equal to, that is stamen, is equal to stamen, then megasporophil is equal to, megasporophil क्या होगा? मेगास्पोरोफिल। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन, एक गूगली क्वेश्चन है। आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको ना कुछ नहीं, सिर्फ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑप्शन में आएगा नंबर 1 दोस्तों, दैट इज ओविल, ओविल। नंबर 2 दैट इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। फिर दोस्तों आएगा 1 2 3, फिर आएगा दोस्तों दैट इज कार्पेल। फिर ऑप्शन में आएगा दैट इज, मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसके बाद आएगा ओहरी। तो आपको मार्क करना है, आंसर इज 3 कार्पेल। समझ में आ रहा है? 3 कार्पेल, सिंपल। आंसर इज 3 कार्पेल। आंसर क्या है दोस्तों? कार्पेल। लास्ट क्वेश्चन बोलता हूं और रुकता हूं। लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों और फिर रुकते हैं। दैट इज इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म मान लो, इन एंजियोस्पर्म दैट इज male gametophyte, in angiosperm for example female gametophyte, in angiosperm female gametophyte is equal to embryo sac, embryo sac।
embryo sac, then male gametophyte is equal to then male gametophyte, then male gametophyte is equal to question mark, then male gametophyte is equal to number 1, that is male gametophyte is equal to दोस्तों that is microsporangium pollen sac, that is anther और नंबर 4 pollen grain. चलो बोलो pollen grain. Answer would be चला सांगा फाटकन. Answer would be pollen grain. हे असले खतरनाक एमसीक्यू आहेत. हे तरी मी एवढं डिटेल मध्ये बोललो. डायरेक्ट येतं इन एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सॅक इज इक्विव्हॅलेंट टू, इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सॅक इज इक्विव्हॅलेंट टू, काय आन्सर असणार आहे पोलन ग्रेन. इन एंजियोस्पर्म स्टेमन इज इक्विव्हॅलेंट टू कार्पेल, इन एंजियोस्पर्म ओवल इज इक्विव्हॅलेंट टू पोलन सैक. ये क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच. कल बात करेंगे एक एक के बारे में, कल बात करेंगे एक एक के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेराइल टिश्यू? जो कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनाते उसे कहते हैं स्टेराइल टिश्यू. ओके, जो कोई भी मेल गॅमेट या फिमेल गॅमेट नाही बनाए उसे कहें सेल कवागेना. एवढं झाल्याच्या नंतर हे युनिट कंप्लीट करूया अगोदर. आता याच्यानंतर एकाच्या नंतर लिव्हिंग वर्ल्ड आणि मग सेल. ठीक आहे. अल्गी मध्ये आर्चिगोनियम नाही बेटा ऋतुजा, अल्गी मध्ये ना ओगोनियम आहे आणि एंथेडियम असतो. मात्र अल्गी का फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन है एंथेडियम. डीपीपी डिस्कशन सर प्लीज. ओके जस्ट वेट. समझे? कैसा लगा आपको पीके? पीके कैसा लगा? टॉपिक बोल रहा हूं मैं, कोई जूस नहीं. टॉपिक कैसा लगा पीके? कैसा लगा टॉपिक पीके? ओके चलो डीपीपी डिस्कस करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट था चाहिए था. फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट इज नोन एज दोस्तों अपोस्पोरी कहते हैं उसे, अपोस्पोरी. अगर उल्टा आता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट तो होगा अपोगैमी. फॉर्मेशन ऑफ गॅमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मिओसिस त्याला अपोस्पोरी म्हणायचं. मी लिहून दिलेलं आहे अगोदर. यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज दैट दे प्रोड्यूस स्पोर. नहीं, बाकी के भी लोग बनाते हैं. Have sporophyte attached to gametophyte. Yes, ये हो सकता है. लैक रूट, बाकी के लोगों में भी रूट नहीं होता है ना. अलगी है जिसमें रूट नहीं है. लैक वेस्कुलर टिश्यू, अलगी है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं. तो स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट ये उसका यूनिक फीचर है. बी इज द आंसर. नंबर 3, इन जिम्नोस्पर्म हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोलन ग्रेन? आंसर इज 2 एंड 1 विल डीजनरेट. तो आंसर यहाँ पे 3 है. क्वेश्चन नंबर 4, स्पोरोगोनियम ऑफ पॉलीट्राइकम पोजी. स्पोरोगोनियम म्हणजे स्पोरोफाइट ऑफ पॉलीट्राइकम. पॉलीट्राइकम मीन्स मॉस, मॉस मीन्स ब्रायोफाइट. सो फूड सेट एंड कैप्सूल. Yeah, 1 is the answer. क्वेश्चन नंबर 5, विच वन प्रोपेगेट थ्रू द लीफ टिप? मैंने करेक्शन किया है. वॉकिंग फर्न जिसको कहा जाता है एडियंटम, मीन्स इन एडियंटम और वॉकिंग फर्न वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय लीफ टिप, इसलिए उसे वॉकिंग फर्न कहा गया है या फिर उसका नाम है एडियंटम. करेक्ट किया गया है ये क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली? पाइनस कोरोलॉइड रूट्स, यही तो इनकरेक्ट मैच है. कोरोलॉइड रूट्स आर फीचर ऑफ साइकस. सिड्रस ब्रांच स्टेम, करेक्ट. पाइनस और सिड्रस में स्टेम ब्रांच्ड है. सिक्विया टैप रूट सिस्टम होगी, बराबर है. साइकस अनब्रांच स्टेम, ये भी है. ये सभी, किसी ने तो बोला सर जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल बताओ. पाइनस, सिड्रस, सिक्विया, साइकस, these are the example of gymnosperm. 7 number question, dominant phase in life cycle of most of the algae and fungi is haploid होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. 8, which one produces carrageen? carrageen नाम का एक हाइड्रोकोलाइड होता है दोस्तों, and that is produced by red algae. carrageen है, अगार है, वो रेड algae बनाती है, याद रखो. algin is produced by brown algae. Question number 9, जमे for vegetative reproduction occur in Funaria, fern, Mertensia and Rixia. तो जमे, these are दोस्तों asexual green colored bird होते हैं, haploid bird, which help in asexual reproduction and they are present in Mertensia, present in Jamaica. Question number 10, in Pinus, Cycas and Gymnosperm, the endosperm is
Triploid, haploid, diploid, or tetraploid? Answer is haploid and pre-fertilized. And in angiosperm, that endosperm होगा triploid. पर यहाँ पे क्या है? Haploid. Answer is 2. Okay. देखते कितने मार्क का है. ओके. पुष्कर काळे 40 आउट ऑफ 40. तेजस्विनी डकले 36. एक जणालाच पडलेत. अभिजित धर्मेंद्र 35. आदित्य बोर्डे 35. हर्षदा शिंदे 35. प्रणिता कातार 35. ओके. इथपर्यंत 35. कोणी आहे का 40 आणखीन? बरंच लोकांना अवघड गेलेलं दिसतंय. बऱ्याच लोकांना 40 आहेत. वेदांशला पण आहेत. बरं, हे येत नाही तर ह्या ऍपचा काहीतरी इश्यू आहे बघा. हा, इथं आले बघा आता. पुष्कर काळे 40, सृष्टी इंगळे 40, शैश कुंभकर्ण 40, तेजस्विनी डकले परत ते 3च आले. आणखी पण असतील बऱ्याच लोकांना खाली असतील ते, पण इथं काही येणं झाले बघा. बघावं लागेल मला. हा, इथं आहे आणखीन. आमेश लकाश 40, अर्णव साहेबराव संबेराव 40. ओके. माधव फुक्के 40, वैदही नंदेश्वर 40, श्रेया वडवे 40, प्रतीक दांडगे 40, वृषाली वाघ 40, समृद्धी दाने 40, अजय जगताप 40, सनवी पवार 40. एवढे लोक आहेत. कोणाचं राहिलं असेल तर मिस झाले समजा माझ्याकडनं समजा. वेदांश लकडे 40, आयुष दुर्बुडे 40. बढ़िया, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. कल बात करते एक एक की. इथपर्यंत घेतलंय मी. टेक्स्टबुक सोबत पाहिजे हा एकेला मला. ठीक है, बढ़िया. उन्मेष साळुखे, अभिनंदन बेटा 40 आउट ऑफ 40. उन्मेष, बहुत बढ़िया. तो रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही. चलो चलो, ठीक है. जिम्नोस्पर्म में एंथ्रिडियम एब्सेंट है बट आर्चुगोनियम इज प्रेजेंट. करेक्ट शंभो बेटा, करेक्ट. करेक्ट है, करेक्ट है. ठीक है. आज शेवटचं लेक्चर होतं पीकेचं. टाटा बाय बाय पीके. कल बात करते हैं एके के बारे में. कल से मैं ये पीके नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एके. ठीक है. आपको कैसा लगा ये टॉपिक? कैसा लगा ये पीके टॉपिक पढ़ के? कैसा लगा आपको? ओके. कैसा लगा, ऐसा लगा तुमसे मिलके. ओके. अरमां हुए पूरे दिल के तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है. ना 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 ना. साथ रहेंगे ना होंगे जुदा, तुमसे ये वादा रहा, तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के. ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है. साथ होंगे, पुढं काय आठव ना मला. ना 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 होंगे जुदा, तुमसे ये वादा रहा. सुरेश वाडकरांनी गायलेलं गाणे. मूवी आहे परिंदा. अनिल कपूर आणि मला वाटतं माधुरीचा. गाणं आहे का कधीतरी? तुमसे मिलके. चलो बाय बाय, पढ़ते रहो. ठीक आहे. मग आज डीपीपी कशावर असणार आहे? बीईजी. बीईजी पण संपत आलाय. तिकडे बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन सुरू करूया. ऑलमोस्ट उद्या दोन्ही टॉपिक्स, उद्या तिकडे बीईजी संपत. ठीक आहे.
रिक्षा इज ऑल्सो करेक्ट. रिक्षामध्ये तसं नाही बेटा, क्वेश्चन 9 मध्ये जम्मा नसतात तिथं. हा, रिक्षामध्ये जम्मा नाहीत बेटा. एक बुक भरले, असू द्या, बेस आहे हा. हा बायोलॉजीचं फाउंडेशन आहे. पहिले काय टॉपिक फाउंडेशन आहे. ठीक आहे. हा, उद्या एक सुरू करूया. मोठी नोटबुक भरली, भरणारच. दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेंट. भरणारच. ते इतका टॉपिक चांगला करायचा आहे की त्याच्याबरोबर खूप सारे बॉटनीचे क्वेश्चन येणार आहेत. तेवढ्या एवढ्या टॉपिक मधनच 5 MCQ येऊ शकतात. 5 ते 6 आणि 7 बी तेवढ्या टॉपिक मधनच भरपूर सारं कव्हर केलं मी बॉटनीचं. ठीक आहे. थँक्यू. चलो बाय. जा, तुमचं लेक्चर सुरू झालं. बाय.